Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about skeletal muscle for class 2nd year biology. First we discuss about the learning objectives. We want to understand the skeletal muscle and also discuss the structure of skeletal muscle, in which we discuss about muscle bundle, muscle fibers or muscle cells and muscle fibrils. Now first, what is a skeletal muscle? The muscles attached to the bone or skeleton is called skeletal muscle. These skeletal muscles attach with the help of connective tissues which are called as tendons or ligaments. When the bone is attached to the muscle, then this connective tissue is called tendon, and when the bone is connected to the bone, then this is called ligaments. In this diagram we see that the connective tissue tendons help to join the bone with muscle. So this connective tissue is called tendon and it helps to join the bone to the muscles. In another diagram we see that these two bones are connected by a connective tissues called ligament. So ligament help to bind bones to bone, while the connective tissue tendons help to bind muscle to the bone, and these are two connective tissues which help the muscles to attach with the bones or skeleton. That's why they are considered in skeletal muscle. Now we discuss about the structure of skeletal muscle. The outer covering of the muscle is called epimysium. Each epimysium are made up of fibrous membrane, fibrous cells, and each muscle are made up of 1000 muscle bundles. Now each muscle bundle is also covered by another membrane which is called perimysium. So the outer covering is called epimysium, and the inside where the muscle bundles are present and which is also covered by another membrane is called perimysium, and these muscle bundles are made up of long fibers called myofibers. Now we consider this diagram which shows that the outer covering of muscle is called epimysium, while inside the epimysium there is muscle bundle. This is the muscle bundles. Now this muscle bundle is also covered by a membrane which is called perimysium. Now this perimysium is covered the muscle bundle. Inside the muscle bundle there are the thousands of muscle fibers which consist of muscle cells or muscle fibers. Now in this diagram shows that the covering of the skeletal muscle, there are following covering: perimysium, epimysium and endomysium. We know the first covering is the epimysium, which is the outer covering, while the bundle sheet is covered. This muscle bundles are covered by a membrane which is called perimysium, while the bundle inside the bundle, the muscle fiber is covered by another membrane which is called endomysium. So this is all about the covering of skeletal muscle, and you also show that this muscle is attached to the bone with the help of connective tissue which is called tendon, and this is the bone. Now what is a muscle fibers or muscle cell? Basically the membrane of muscle cells which is called sarcolemma. Sarcolemma is not a continuous like a cell membrane, but it invaginates inward and form a structure called T-tubule. क्या होता है कि जब आप मसल बंडल के अंदर आपने जो सेल्स देखे जिसे हमने मायोफाइबर्स मसल फाइबर्स बोला या मसल सेल्स का है, वो बेसिकली क्या होते हैं कि उनके ऊपर जो मेम्ब्रेन मौजूद है वो
कंटिन्यूसली प्रेजेंट, बल्कि वो क्या होती है, इन्वेजिनेट हुई हुई है, वो इनसाइड क्या फोल्ड हुई हुई है। इनसाइड फोल्डिंग होने की वजह से वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है जिसे आप टी ट्यूब्यूल बोलते हैं। और जो आपके पास ये जो मसल सेल्स हैं या मसल फाइबर्स हैं, इन्होंने जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उस साइटोप्लाज्म को क्या कहेंगे, सार्कोप्लाज्म। सो द साइटोप्लाज्म present inside the muscle cells are called sarcoplasm. This sarcoplasm consists of myoglobin, which is the oxygen storing protein, and a large number of mitochondria. Mitochondria are responsible for the production of ATP and sarcoplasmic reticulum. The sarcoplasmic reticulum is responsible for provide the network for transporting molecules, that is the calcium ion, for contraction and relaxation of the muscle. Sarcoplasm reticulum is a network which provide different molecules for help in contraction and relaxation of the muscles. इसके साथ साथ ये बात भी आपने याद रखनी है कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इट स्टोर द कैल्शियम आयंस, ये जो है वो कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है। और ये आपने आगे हम जब इसका फर्दर जब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, तो हम देखेंगे कि कैल्शियम आयन जो है वो ब्रिज बनाने में उसका इन्वॉल्वड है, रोल इन्वॉल्वड है, उस चीज़ को हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में डिस्कस करेंगे। ये फिलहाल आपको ये बात याद हाँ तक ये बात पता होनी चाहिए कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपका नेटवर्क है विच हेल्प फॉर द नर्व इम्पल्स कंडक्शन, जो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो ज़रूरत है वो प्रोवाइड करके जो नर्व के इम्पल्स की कंडक्शन है उसको जो है इजी करेगा ताकि वो नर्व इम्पल्स जो है कंडक्ट हो सके। फर्दर हम इसको ज़रा देखते हैं कि जो हमारे पास ये आपके पास मसल बंडल है, और जो मसल बंडल के अंदर आपके पास क्या है, मायोफिब्रल्स, जिसको जो आप मायोफाइबर्स बोल रहे थे। मायोफाइबर्स के अंदर जो आपके जो इधर आपके पास जो ये मेम्ब्रेन मौजूद है, जिसको हमने कहा इसकी जो मेम्ब्रेन है, जो सेल्स की मेम्ब्रेन जो इधर कवर हुई हुई है, वो जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि क्या होती है वो इनसाइड क्या होती है उसकी फोल्डिंग मौजूद है। इनसाइड फोल्डिंग होने की वजह से क्या होता है कि वो स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम टी ट्यूब्यूल्स कहेंगे। और जो नेटवर्क जो मौजूद है इधर, जो नेटवर्क इसके साइटोप्लाज्म में जो नेटवर्क मौजूद है, जो आपके मसल सेल्स हैं उनमें जो नेटवर्क मौजूद है उसे जो प्रोवाइड करे उसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क मौजूद है, जो क्या कैल्शियम आयन को स्टोर करेगा और वो फर्दर जो है जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन है उसमें हेल्प करेगा। तो ये तो मसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में था कि इसका ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल कैसे होते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि मायोफिब्रल्स जो है वो क्या है। मायोफिब्रल्स बेसिकली appeared in the form of dark and light portion in the muscle fiber. अब क्या होता है, जो मसल बंडल है, मसल बंडल में जो मसल फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स में जो दो किस्मों के आपके पास फिलामेंट्स मौजूद होते हैं, थिन और थिक फिलामेंट्स मौजूद हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मायोफिब्रल्स। ये जो मायोफिब्रल्स मौजूद हैं ये क्या बनाते हैं, लाइट एंड डार्क पोर्शन बनाते हैं, जिसको अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि उन जो हैं जिसको हम लाइट एंड डार्क बैंड भी कहेंगे। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर हमें कैसे नज़र आता है। तो ये जो बेसिकली आपके पास ये अब हमने फर्दर इसके हम डिटेल हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो हमारे पास जो मायोफिब्रल है, मायोफिब्रल कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स। कौन कौन से, एक को हम थिन फिलामेंट कहते हैं, एक को थिक फिलामेंट कहते हैं। तो थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल while the thick filament is made up of myosin के बने हुए हैं। एंड द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है, उस इस पूरे Z से लेके जो ये Z तक ये जो पूरा एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बनाएगा, ये पूरा आपका क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोमियर। सार्को का मतलब क्या है कि मसल्स में प्रेजेंट है, इसी वजह से जो चीज़ मसल में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, जैसे सार्कोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्म को हमने सार्कोप्लाज्मा बोल दिया। इसी तरह ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बन रहा है मसल में बन रहा है, इस वजह से इसको हम स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, सार्कोमियर बोलेंगे।
अब आपको मैंने बताया कि ये जो मायोफिब्रिल है, ये पूरा एक हमने मायोफिब्रिल को कंसिस्ट कर लिया, ठीक है। और ये जो मायोफिब्रिल है किसका बना हुआ है? थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट का बना हुआ है, विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड्स, विच इज, ठीक है। जो थिन फिलामेंट है वो एक्टिन मॉलिक्यूल, जो एक्टिन है प्रोटीन का बना हुआ है, और जो मायोसिन है वो, जो थिक फिलामेंट है वो मायोसिन प्रोटीन का बना हुआ है। और ये जो पूरा एक आपके पास ये जेड लाइन, ये जेड डिस्क जो है, ये आपको ये नज़र आ रही है, इस यहाँ से लेके जो यहाँ तक आपको लाइन अगर मैं खींचूँ तो एक लाइन हम बना सकते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक अगर हम यूनिट बनाएं तो इसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोमियर बोलते हैं। इस सार्कोमियर के अंदर जो मिड रीजन है, अब आपके पास दो फिलामेंट्स हैं। अब आपको ये जो एक पतले से, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये आपको यहाँ पे जो पतले से जो फिलामेंट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये आपके पास थिन फिलामेंट है। और ये जो आपको थोड़े जो मोटे से जो फिलामेंट थिक नज़र आ रहे हैं, ये आपके पास मायोसिन फिलामेंट है। अब क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से जेड लाइन से लेकर जेड लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? सार्कोमियर कहलाएगा, जिसको हमारे पास क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। और इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट को या सार्कोमियर को? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन। फिर सुन ले इसको, अगर डेफिनेशन आ जाए तो आप इसकी डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज डिफाइन, सार्कोमियर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर। फिर इसके बाद आप ये देख रहे हैं, अब अगर ये आप देखते हैं इधर एम लाइन मौजूद है, तो ये आपने बात याद रखनी है। एम लाइन जो होती है वो मीडियन लाइन है, वो इन द मिडल जो है ना, इन द मिडल ऑफ जो डार्क बैंड है, जो डार्क, ये देखें, ये आपके पास ये थिक फिलामेंट है ना, जिस ये थिक फिलामेंट में जो ये मिडल लाइन बनती है उसे हम एम लाइन बोलते हैं। तो ये एम लाइन के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं ये आई बैंड और ए बैंड से क्या मुराद है। आई बैंड आपने याद रखना है कि आई बैंड जो है वो आपके पास लाइट बैंड है। लाइट बैंड का मतलब ये है कि इट कैन बी पोलराइज द लाइट। लाइट बैंड का क्या मतलब है? इट कैन पोलराइज द लाइट। ये और ये दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल, एक्टिन प्रोटीन। ये नीले रंग के जो आपको नजर आ रहे हैं ये बेसिकली क्या है? एक्टिन मॉलिक्यूल है। और ये क्या बनाते हैं? आई बैंड बनाते हैं। क्यों आई बैंड बनाते हैं? बिकॉज इट कैन पोलराइज द लाइट। ए बैंड आपके पास क्या है? ए बैंड बेसिकली क्या है? थिक फिलामेंट बनाते हैं, थिक फिलामेंट बनाएंगे। और ये आपके पास क्या करेगी? थिक फिलामेंट जो बनाएगी ये आपके पास जो है वो क्या बनाएगी? डार्क बैंड बनाएगी। और जिसको हम ए बैंड इसलिए कहते हैं बिकॉज इट कैन नॉट पोलराइज द लाइट। जो क्या करे? लाइट को पोलराइज ना करे उसको हम ए बैंड कहते हैं या डार्क बैंड कहेंगे। ए बैंड या डार्क बैंड कहेंगे। जो लाइट को पोलराइज करे उसको हम क्या कहेंगे? आई बैंड कहेंगे या लाइट बैंड भी कहेंगे। और ये बात याद रखनी है कि ये आपके पास थिक फिलामेंट बना रही है और ये आपके पास थिक फिलामेंट्स बना रही है। अब जो आपके पास दो सार्कोमियर के दरमियान आपके पास ये दो जेड लाइंस के दरमियान जो दो लाइन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? एच जोन। जो आपके पास इधर जो रीजन बनेगा दो जो ये आपके पास पूरा सार्कोमियर यूनिट है, इसके जो जेड लाइन के दरमियान आपके पास जो लाइन बनेगी उसको हम जेड जोन बोलते हैं, जिसका मतलब है क्लियर जोन। ये क्या है? जेड जोन का मतलब है, इसे हम एच का मतलब होता है हेलेशियन विच मीन्स लाइट या क्लियर जोन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लियर जोन आपके पास प्रेजेंट है। ये एच लाइन किसे रिप्रेजेंट कर रही है? यहाँ पे आपके पास दो जेड लाइन के दरमियान जो आपके पास रीजन मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं एच जोन। और इस पूरे जेड लाइन के पूरे ये जो एक यूनिट बनता है उसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। और ये जो पूरा यूनिट बनता है इसके में दो बैंड्स मौजूद होते हैं, एक को हम आई बैंड बोलते हैं और एक को ए बैंड बोलते हैं। जो आई बैंड है वो आपके पास लाइट बैंड है। लाइट बैंड क्यों है? बिकॉज इट कैन पोलराइज द लाइट। और ए बैंड इसलिए बिकॉज इट कैन नॉट पोलराइज द लाइट। और जो आपके पास आपने ये बात याद रखनी है कि जो आपके पास ये देखें जो ये आपको जो रीजन नजर आ रहा है, जो आपके पास डार्क बैंड में लाइन बनती है उसको हम एम लाइन बोलते हैं।
और ये आपके पास किधर बनेगी, डार्क बैंड पे लाइन बनेगी। और जो सार्कोमियर पे आपके पास लाइन बनती है, जो मिडल में ये जो यहाँ पे आपके पास जो लाइन बनेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, एच जोन, और जिसका मतलब होता है क्लियर जोन। और ये अब आपको ये फर्दर उन्होंने दिखाया कि ये जो आपके पास ये जो डार्क बैंड है, ये जो आपके पास ये एक्टिव मॉलिक्यूल दिखाएं, ये आपके पास जो है मायोसिन का जो बना हुआ है थिक फिलामेंट्स है, ये थिन फिलामेंट्स हैं। और इसके दरमियान में ये है वो आपको ये क्या शो कर रहा है, ये आपके पास एम लाइन मौजूद है। और ये जो सारा रीजन होगा ये आपके पास कौन सा होगा, एच जोन का रीजन होगा। और यहाँ से जेड डिस्क से लेके जेड लाइन से लेके जेड लाइन तक जो डिस्टेंस होता है उस पूरे यूनिट को हम क्या बोलेंगे, सार्कोमियर बोलेंगे। तो एम लाइन हम किसे कहते हैं, मिडल लाइन को बोलते हैं। ये हमारे पास किधर बनती है, ये आपके पास डार्क बैंड में बनती है। और जो ये इसका एरिया जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एच जोन कहेंगे। और इसकी फर्दर जब हमने इसको अगर हम इसकी अपीयरेंस देखते हैं तो इसकी हमें इस तरह की अपीयरेंस आती है। यहाँ पे देखें डार्क बैंड बना, ये लाइट बैंड बना, फिर डार्क बैंड आपके पास बन गया, फिर ये लाइट बैंड बन गया, फिर डार्क बैंड बन गया। तो ये जरी बात है, ये बैंड्स की फॉर्म में क्या इसकी अपीयरेंस आई थी, इस वजह से हमने इसे क्या कहा, ये इसके जोन्स को हमने क्या बोला, ये आई बैंड को क्या बोल दिया, लाइट। जहाँ पे आई बैंड मौजूद है उसको हमने क्या बोला, लाइट बैंड बोल दिया। जहाँ पे ये डार्क रीजन मौजूद था उसको हमने क्या बोल दिया, ए बैंड कह दिया, जो इसको हम डार्क बैंड भी कहते हैं। तो ये अपीयरेंस आपको शो करती है कि जो स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं वो कैसे अरेंज हैं, और जो उनकी अरेंजमेंट ऐसी है कि रेगुलर पैटर्न पे क्या स्टेरेशन मौजूद है, कि लाइट और डार्क बैंड रेगुलर पैटर्न से मौजूद हैं जी। और जिसकी वजह से ये आपके पास जो है स्टेरेशन या स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या लाइट और डार्क बैंड्स मौजूद हैं। और ये उन्होंने जो है ना इसकी फर्दर जो है हमें इनकी तस्वीर से हमें शो करा रहे हैं कि लाइट एंड डार्क बैंड्स कैसे प्रेजेंट हैं। अब हम देखते हैं कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मसल्स जो हैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। और ये देखें फर्दर आप इस डायग्राम में देखें, ये जोन मौजूद है। ये आपके पास जो है मायोसिन, ये थिक फिलामेंट है, ये आपके पास थिन फिलामेंट है। अब ये देखें कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अभी ये देखें कॉन्ट्रैक्ट किया तो रिलैक्स किया। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपने याद रखने का डिस्टेंस जो होता है जेड लाइंस का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और मसल कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब ये आप कॉन्सेप्ट आपने हमेशा याद रखना है। इफ टू जेड लाइंस कम क्लोज, if two Z lines come close to each other, sarcomere distance decreases and muscle is said to be contracted. और इसी तरह क्या होगा, if two Z line moves away from each other, sarcomere का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और मसल आर said to be relaxed. अब ये देखें ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ये रिलैक्स्ड हो रहा है। तो इस तरह हमारी मसल की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रही होती है। और ये जो है जब जारी बात है कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास जो मिडिल लाइन है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एस जोन डिसअपियर हो जाएगा। और जब रिलैक्स होगा तो ये दोबारा एस जोन जो है वो आ जाएगा और मिडिल लाइन अपीयर हो जाएगी। तो ये तो था आपका इसके बारे में कि कैसे जो है मसल जो है हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं। और ये एक्टिन ऑफ एलिमेंट जो एक्टिन और मायोसिन मसल्स हैं, ये इनको की वजह से क्या है, ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रही है। और ये आपके मायोफिब्रल्स हैं जो किधर प्रेजेंट होते हैं, स्केलेटन मसल में प्रेजेंट है। और ये पूरे का पूरा जो अगर आपने ये याद रखें जेड लाइन से जेड लाइन तक का जो डिस्टेंस है ये आपका क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, जिसे आप सार्कोमियर कहते हैं। तो अब हम इससे फर्दर जो है ना जो हमने पढ़ा है वो उसमें देखा कि हमारे पास ये मसल है, मसल्स के अंदर जो है हमने ये देखा कि ये मसल्स कैसे स्केलेटन के साथ अटैच्ड हुए हैं। फिर फर्दर हमने जो है ये मसल बंडल में से जो है मसल फाइबर्स के बारे में पढ़ा। मसल फाइबर्स में हमने मसल फिलामेंट्स के बारे में पढ़ा कि जो मायोफिब्रल्स जिनको हमने बाला है, मायोफिब्रल्स कैसे प्रेजेंट है। फिर उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये दो यूनिट के ये जो आपको एक शो किया गया है, ये बेसिकली सार्कोमियर आपको शो किया गया है कि आपका कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। अब इसके अंदर आपको ये बारीक सी लाइन शो की गई और रेड कलर की ये जो है ना थिक, ये जो बारीक लाइन शो की ये थिन फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है। और ये आपस में ये शो किया गया है कि कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट और
रिलैक्स किए जाते हैं। और ये देखेंगे जेड लाइन ये शो करेंगे, देखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो जेड लाइंस का जो डिस्टेंस जो बनता है उनके दरमियान सक्सेसिव डिस्टेंस जब हम लेते हैं तो ये वाला हिस्सा सारा क्या बनता है, सार्कोमियर का बनता है, और ये एक्टिन मायोसिन फिलामेंट का बना हुआ है, और ये हेल्प करते हैं मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल के बारे में। तो नेक्स्ट टाइम जो है अब हम इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।